besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. हामीलाई तपाईको खाँचो छ। ती नारी धन्यको हुन्, तपाईँलाई गर्भधारण गरिन् र दूध चुसाइन्। बरु ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले मेरा वचनहरू सुन्छन् र पालना गर्छन्। हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् जसरी योनाले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको थियो। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ यसो भन, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आज हामीलाई दिनभरिको भोजन दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। धेरै पहिले अगमवक्ताहरूले धर्मशास्त्रमा लेखेका थिए कि परमेश्वरले मसीहलाई पठाई पापीहरूलाई बचाउनु हुनेछ र परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु हुनेछ। येशू ख्रीष्टको जीवनले के देखाउँछ भने उहाँ वास्तवमै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यशाया नामका एकजना अगमवक्ताले लेखेका छन्, हेर कन्या गर्भवती हुनेछिन्, तिनले एउटा छोरो जन्माउने छिन् र यो कुरा पूरा भयो। मरियम कन्या छँदै पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भवती भइन् र येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिइन्। जसरी धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, उहाँको जन्म सम्बन्धी आश्चर्य चाहिँ परमेश्वरको चिन्ह थियो कि जन्मिएका बालक नै मसीह थिए जसलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्र भन्नुभयो। जब मानिसहरूले येशूलाई देखे, उनीहरूले उहाँमा परमेश्वरको शक्ति र स्वभावलाई देखे। उहाँले मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो र उनीहरूको पाप क्षमा गर्नुभयो र उहाँले उनीहरूलाई अनन्त राज्यमा स्थान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। येशूले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो र सम्पूर्ण मानिसका लागि दण्ड भोग्नुभयो। त्यसपछि उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो र यो प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँको शक्ति मृत्युको शक्तिभन्दा महान छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसँग छ र फेरि लिने अधिकार पनि मसँग छ। येशूको जीवनले अगमवक्ताहरूले लेखेका कुरालाई पूरा गर्यो र परमेश्वरको पवित्र वचन अकाट्य र अनन्त छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो। जे अगमवक्ताहरूले भनेका थिए त्यो भयो। येशू नै परमेश्वरको वचन हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले आफैलाई यस संसारका मानिसहरूका लागि प्रकट गर्नुभयो। येशू हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनका लागि आउनुभयो, जुन जीवन परमेश्वरले पहिलो मानवका रूपमा पुरुष र स्त्रीलाई सृष्टि गर्दा दिनुभएको थियो।
तर उनीहरूले परमेश्वरलाई धोका दिए र उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गरे। धर्मशास्त्रमा यो लेखिएको छ, सबै मानिसले पाप गरेका छन् र पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। जो मानिसले पाप गरेको छ ऊ परमेश्वरसँग जिउन सक्दैन। तर जसरी परमेश्वरले अब्राहमको छोराको सट्टामा मर्नको निम्ति थुमा जुटाउनु भयो, त्यसरी नै आदमको सन्तानहरूको स्थानमा मर्नको लागि येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। उहाँले यसो गर्नुभयो ताकि जसले प्रभु येशूमा विश्वास गर्छ र उहाँमाथि भरोसा राख्छ ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन सक्छ। त्यसकारण जसले येशूलाई पछ्याउँछ उसले नरकको दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँछ र सदा सर्वदा परमेश्वरसँग वास गर्नेछ। जब येशू मृतकहरूबाट जीवित हुनुभयो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मानिसले मेरो नाउँमा सारा जातिहरूको माझमा घोषणा गर्नेछन् कि जसले पश्चाताप गर्छ र उहाँतर्फ फर्किन्छ, परमेश्वरले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। येशूले यो पनि भन्नुभयो कि उहाँले आफ्ना चेलाहरूसँग रहनका निम्ति, उनीहरूलाई सत्य प्रकट गर्नका निम्ति र उनीहरूलाई परमेश्वरको मार्ग पछ्याउने शक्ति प्रदान गर्नका निम्ति पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ। जब पापी स्त्रीले पश्चाताप गरिन् र येशूलाई पछ्याउन थालिन्, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ। जसले येशू ख्रीष्टको चेला हुने निर्णय गरेका छन्, उनीहरूले यस्ता वचनहरू प्रयोग गरी आफ्नो विश्वास प्रकट गर्न सक्छन् र ख्रीष्टसँग आफ्नो सम्बन्ध सुरु गर्न सक्छन्। परमेश्वर पिता, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। मैले तपाईँको आज्ञाहरू पालन नगरी तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको कारण म दुःखी छु। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो खातिर क्रुसमा मर्नका निम्ति पठाउनु भएको लागि धन्यवाद। र उहाँ फेरि मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। उहाँले मैले भोग्नुपर्ने दण्ड भोग्नु भएको लागि म धन्यवाद दिन्छु। म तपाईँको बाटो पछ्याउँछु र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा अँगाल्न चाहन्छु। म धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँले मेरा पापहरू क्षमा गर्नुभयो र सधैँभरि तपाईँसँग तपाईँको राज्यमा हुनका निम्ति बाटो खोलिदिनुभयो। पवित्र आत्मा मसँग रहनका निम्ति दिनुहोस् र मलाई तपाईँको बाटो देखाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। उहाँले मलाई मेरो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई प्रेम गर्न र तपाईँलाई प्रसन्न पार्न जीवन जिउन शक्ति दिनुभएको होस् र यस संसारका हरेक ठाउँमा मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्। आमेन। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्, म उनीहरूलाई चिन्दछु र उनीहरू मेरो पछि आउँछन्। येशूलाई पछ्याउनेहरू सँगै भेला हुन्थे। उनीहरू हरेक दिन उहाँसँग कुरा गर्थे, धर्मशास्त्रमा उहाँको वचन अध्ययन गर्थे, उनीहरू उहाँको उदाहरण पछ्याउँथे र अरूलाई उहाँको विषयमा बताउँथे। येशूले उनीहरूको हृदयमा वास गर्नुहुने परमेश्वरको आत्माद्वारा उनीहरूलाई डोर्याउनु भयो र सशक्त बनाउनु भयो। येशू उहाँको स्वर्गीय सिंहासनमा उचालिनुभन्दा अघि भन्नुभएको कुरालाई उनीहरूले मनमा राखेका थिए। परमेश्वरले मलाई पृथ्वी र स्वर्गमा सम्पूर्ण अधिकार दिनुभएको छ। यस कुरामा निश्चित हौ कि जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु।